परमेश्वर की एक एक योजना हर एक व्यक्ति के जीवन में है। നമ്മൾ ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. जब हम परमेश्वर की योजना पर आता है उस समय हम आशीष में बढ़ना शुरू होता है. ആമേൻ. നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. कितना भी योग्य क्यों ना हो, हम परमेश्वर की योजना के मुताबिक ना आए, हमारे जीवन फेलियर होके जाएगा. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടിയാണ്. परमेश्वर की वचन एक प्रोमिस हमें देता है. क्या है? परमेश्वर जिसको बुलाया वो उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होती है. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയാമോ? സകലതും എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. सब लोग मिलकर बोले, सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए होगा. सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए होगा. Once again, सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए होगा. Because I love the Lord. Because I love the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So today, no matter what situation you are in, देखो आप किस प्रकार से किस बात में परेशानी में है वो कोई बात नहीं है. if you are a person who knew the Lord, यदि परमेश्वर को आप जानते हो, then you are in the purpose of God. आप परमेश्वर की योजना में ही है. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to just share something that God has put in my heart. परमेश्वर मेरे दिल में जो दिया वो कुछ बात मैं आपके दिल में देना चाहता हूँ. And we are just going to read some verses and we are going to discuss. मैं कुछ वचन पढ़ने के बाद कुछ देर हम सोचेंगे. This is not a preaching, or I am not a preacher. मैं तो एक प्रचारक नहीं हूँ, ये प्रीचिंग नहीं सोचना. हम थोड़ी देर बातचीत करने के लिए हम चाहते हैं. But this is something that God has put in my heart. मेरे दिल में जो परमेश्वर ने डाला उस बातों को मैं आपसे बताना चाहता हूँ. Amen. Hallelujah. So let us turn our Bibles to Romans chapter 6. रोमियो के पत्री 6 अध्याय 6 अध्याय And verses 1 onwards. पहले आयत से पढ़ी. It says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Yeah, I hope everyone understood. हिंदी पढ़ सकती हैं आप? Romans chapter 6 verse 1 से 4. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं. हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. Amen. Hallelujah. So if anyone here is going through a phase of struggle in their life, यदि आप अपने जीवन में किसी भी बातों की मुसीबत से आप चल रहे हो तो it could be in many areas of our life. हमारे जीवन में किसी भी एक भाग में हो, Yeah, it could be a spiritual area where you are struggling to overcome. शायद आपके जीवन की जो आत्मिक जीवन में हो. Amen. It may be a physical area where you are not experiencing, a healing. हमारे शारीरिक तौर पे हो जो आप
आपके जीवन में चंगाई को चाहते हो, or it could be in your day-to-day life where you're not experiencing freedom. आपके जीवन की प्रतिदिन की यात्रा में जो आप स्वतंत्रता को अनुभव ना करते हो, If you understand this principle, आप जिस योजना या इसकी उसका रीति रिवाज आप जानते भी हो, your life will be free. आपके जीवन क्या खुला हो जाएगा। Amen. Everyone say freedom. आप बोलिए, Amen. And स्वतंत्रता बोलिए। that's what God wants us to walk in. परमेश्वर चाहता है उसी में आप चाल चले। God wants us to walk in the newness of life. परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके बारे में? एक नयापन में हम दिन प्रतिदिन चले। Everyone say life. Life. Life in abundance. Amen. Hallelujah. So Jesus came to give us life. सब लोग समझ रहे हैं ना? ट्रांसलेशन का जरूरत है? No? Everyone understand? किसी को? है? अच्छा रहेगा। अब वो दोनों भाषा में समझ में आएगा आपके। Amen. Hallelujah. So what the verses are saying that that when you were baptized into Christ, you died and you were buried with Him. प्रभु यीशु मसीह के वचन में ये लिखा है, जब यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लेता है, उसी के साथ गाड़ा गया। Amen. Hallelujah. So the life you are now living, you don't live in it any longer. देखो, इस प्रकार यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जिस रीति में आप चाल चलन चलते हो, उस चाल चलन बपतिस्मा के बाद नहीं होना। But it is Christ living through you. आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह जीना चाहिए। Amen. Hallelujah. How many of you have taken baptism? कितने लोग आप में से बपतिस्मा लिया? Amen. Hallelujah. I am very happy to see these hands. सब लोगों के हाथों को देखकर मैं खुश होता हूँ। Because when you got baptized, जब आप बपतिस्मा लेते हो, even if you don't know, आपको नहीं मालूम है तो भी you identified yourself with the death of Christ. आप यही प्रकट करते हैं यीशु मसीह की मौत को आप अपने शरीर में लिया। Amen. Today when I am sharing this word, जब मैं इस वचन को आपके साथ बांटते समय, the Holy Spirit is enlightening your eyes inside. परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खुलेगा। Amen. And the Holy Spirit is speaking to you that you have died to yourself. पवित्र आत्मा आपको किस प्रकार मोड़ना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. So whatever struggle you are going through, आप किसी भी बातों के जो समस्या की सामना करते हो, maybe it is a sin that nobody knows about. आपके जीवन में जो पाप, जो आपकी गलतियां, आपके जीवन के बारे में कोई भी ना समझते हो, Yeah, maybe it's a disease or it is it is something physical that you're struggling with. आपकी शारीरिक तौर पे आप कोई समस्या में आप दूसरों को नहीं बता सकते हो, God is going to set you free today. परमेश्वर की आत्मा आपको परिपूर्ण रीति में स्वतंत्रता में पहुंचाएगा। Hallelujah. Because He called us to live in the fullness and newness of life. परमेश्वर हमेशा आपको परिपूर्ण और उसी की स्वतंत्रता के जीवन में पहुंचाता है। Amen. Hallelujah. And why is that? क्यों? Because you not only got buried, क्योंकि आप केवल गाड़ा नहीं गया, but you got resurrected. आप उसी के साथ पुनरुत्थान को भी पाया। When you came out of that water of baptism, जब बपतिस्मा के बाद आप पानी के अंदर से बाहर आते समय you embraced the resurrection of Christ. आप अपने आप में जो पुनरुत्थान को धारण करते हैं। Amen. Hallelujah. So you died, आपने मर गया, but Christ lived in you. आप में यीशु मसीह जीना शुरू होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy? आप में से कितने लोग खुश हैं? Hallelujah. Christ is living in you. आप में यीशु जीवित है। Amen. Hallelujah. When Jesus came out of the water of baptism, जब यीशु मसीह पानी के बपतिस्मा के बाद We बाहर आया, we see the heavens opened. आप देखा है स्वर्ग खुल गया।
Amen. And there was a sound from heaven वहां से एक शब्द आया, saying, "This is my dear son." ये मेरे प्रिय पुत्र है, Hallelujah. In whom I am well pleased. मैं उनमें प्रसन्न हूँ। Amen. Hallelujah. And we see Holy Spirit जब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, descending upon Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। Amen. Hallelujah. Tonight is the night where the Holy Spirit will descend upon some people. परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों के ऊपर आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because you are a new creation. क्योंकि परमेश्वर में आप नया सृष्टि है। Amen. Hallelujah. You are not the old person anymore. आप पुराने आत्मा नहीं है अभी, And you are new creation in Christ. आप यीशु मसीह में नया सृष्टि है। You are purchased by the blood of Christ. यीशु मसीह के खून से अब खरीदा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. So when God is looking at you today, जब परमेश्वर आपको देखता है, God is saying your name. आपके नाम लेकर वो जानते हैं When आपको। God is saying this is Naidu or this is Peter or this is John or whoever you are, आप क्या नाम से परखा गया, लिखा गया, उस नाम से आपको परमेश्वर जानते हैं। and God is saying this is my son, परमेश्वर की आत्मा कहता, ये मेरा पुत्र है, this is my daughter, ये मेरी पुत्री है, in you I am well pleased. मैं आपसे प्रसन्न हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So you have nothing to do with your own life. आप अपने आप में कुछ भी आप मेहनत करने की जरूरत नहीं। You have nothing to do with what the devil wants to do in your life. शैतान क्या आपके जीवन में करना चाहते हो, उसके बारे में आप परेशान नहीं होना। You have nothing to do with what sin wants to do in your life. आप शैतान चाहते होंगे आपसे पाप कराने के लिए, उसके बारे में आप डरना नहीं। Because that has gone. हाँ, उसके बारे में सोचना नहीं, हो गया। Hallelujah. The old has gone. जो पुराना है हो गया, The new has come. आप में एक नयापन आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Everyone say I am a new creation. आप बोलिए मैं नया सृष्टि हूँ। I am a new creation. बोलिए मैं नया सृष्टि हूँ। Hallelujah. And say if I live, आप बोलिए मैं जी रहा है तो I live for God. मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। Hallelujah. If I die, मैं यदि मर जाऊं, I die for Christ. यीशु मसीह के लिए मैं मर जाऊंगा। Whether I live or die, मैं जीने से भी, मरने से भी, God's name is glorified. मैं जीने से भी, मरने से भी परमेश्वर की नाम की महिमा होगा। How many of you fear death? मैं आप में कितने लोग मरने के लिए डरते हो? That's good. ओ बहुत अच्छा। Hallelujah. Because in New Zealand, न्यूजीलैंड में everyone fears death. मरना के लिए सब डरता है। Hallelujah. Because they are running every day just to live this life to the fullest. कुछ कमाने के लिए, जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए दौड़ते रहता है। Amen. Hallelujah. They don't have time for anything. उन लोग कुछ सोचने के लिए भी समय नहीं है। Because they think, oh, I'm going to die. ओ मैं मर जाऊंगा। Hallelujah. That's why the word says, if you have today, then you eat, you drink, because tomorrow you're going to die. इसीलिए जो आशा नहीं है, वो सोचता मैं मरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कल तो मरना ही है। Hallelujah. But that's not how we live. लेकिन हमारे जीवन ऐसा नहीं है। Because we have already died. क्योंकि हम यीशु में एक बार मर गया। Hallelujah. We cannot die again. और हम मरेगा नहीं। Hallelujah. Hey, everyone say, I am not going to die again. मैं और एक बार नहीं मरूंगा, बोलो। Because I have everlasting life. क्योंकि यीशु ने मुझे आनंद जीवन दिया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. So your body is going to be buried one day. That's true. एक दिन आपकी शरीर दफनाना है, वो सच है। But nothing is going to change with you. लेकिन आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं ला पाएगा। Hallelujah. Because you are not your body. क्योंकि आप जो आप है, आपका शरीर केवल नहीं है। I mean, you are the soul. लेकिन आप में आत्मा है। Hallelujah. And you have been saved. आप
यीशु मसीह में उद्धार पाया है, and you have been purchased. आप यीशु मसीह के खून से आप खरीदा हुआ है, Hallelujah. And your life is hidden in Christ. यीशु मसीह में आपका जीवन छिपा हुआ है। Amen. Hallelujah. And that's why Paul, the apostle, says इसलिए प्रेरित पौल कहता है, in Colossians, he says that I am hidden in Christ. इसीलिए कोलोसियों के पत्र में लिखा, यीशु मसीह में मैं छिपा हुआ। When Christ my life appears, यीशु मसीह जब प्रकट होगा, I will appear with him. यीशु मसीह के साथ मैं भी प्रकट हो In जाऊंगा glory. उनकी महिमा में। Amen. Hallelujah. So, whatever you are living this life in, इस दुनिया में आप कैसे भी जी रहे हो, Christ is living through you. आपके द्वारा यीशु मसीह जीना चाहिए। Hallelujah. So if anything is troubling you today, आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको दिवाने की कोशिश करते हो, you are going to die to that thing. आप अपने जीवन में डरने का जरूरत नहीं। Hallelujah. You're going to say, I am dead to you. If I will tell in a more explanatory way. So if a disease is troubling you today, आपको एक बीमारी आपको तंग कर रही, सोचो you are dying to that disease. आप उस बीमारी में नहीं मरेंगे। Yeah. Are you understanding what I'm saying? You are saying, I have nothing to do with you. देखो, उस बीमारी से आप कहना, मैं उस बीमारी से डरता नहीं। Hallelujah. Hallelujah. You're going to say, आप बोलना है, you have no place in me. मेरे जीवन में आपको कोई स्थान नहीं, Go away from me. मुझमें से चले जाओ। Hallelujah. Hallelujah. And it will obey you. जब आप यीशु मसीह में हैं, वो बीमारी आपका मानेगा बात, Because you have the life in you. क्योंकि आप में परमेश्वर की ताकत है, जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. So, yeah, I've shared what I do. वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार हालेलुया। जब यीशु में हम नए हैं, हम अलग हैं। हालेलुया। एक कभी भी नहीं भूलना, हम गुलाम हैं। किसका गुलाम है? Praise the Lord. We are not slave under the authority of devil. एक हमेशा ये सोचना, हम शैतान की अधीन में क्यों नहीं है? स्लेव नहीं है। शैतान आने के लिए बोलते वक्त हम उनके वहां पर घूमे, हम शैतान कुछ बोले उनकी अधीन में नहीं रहना। क्या बोलना? शैतान से बोलना, दर्द को मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। Praise the Lord. अब एक बार सोचो, Praise the Lord, हमें प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है। यस यस जो प्रकृति है ना, यस उसके ऊपर अधिकार है। आमेन Praise the Lord. आमेन। मैं एक दिन बहुत बड़े को क्रूसेड चला रहा था, मेरे पास का पूरा पैसा इस्तेमाल करके वो कर रहा था। अभी यहाँ का हिसाब से बहुत ज्यादा करीब $20,000 उस क्रूसेड के लिए खर्च हो रहा था। बड़े बड़े प्रीचर आ रहे, और जब मैं आकाश की ओर देखा, मेरे दिल टक टक से तड़पने लगा। क्यों? काला था। वो बहुत बड़े ग्राउंड में मीटिंग हो रहा था, और मैं जब बड़े बड़े वार्ड पोस्टर ऐसे चिपका रहा था, तब शैतान मुझसे बोल रहा था, देखो बारिश आएगा, सब गिर जाएगा, तुम क्या करना है? उसी से कोई फायदा। मेरे पास एक स्कूटर था, उस स्कूटर चलाते वक्त ऐसे आंख बढ़ाकर आकाश में देखने के लिए, सच बोलूं मुझे डर रहा था, लेकिन ऐसे वो खड़े होकर ऐसे चला के मैं अपने दिमाग में बोलता था, शैतान तुम नहीं जीतेगा, मेरा ही जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा ही जीतेगा। लेकिन मेरे जो सच बोलूं, मेरे हाथ फटा से तड़प रहा था। यदि मीटिंग सक्सेस नहीं होगा तो वाह, हर एक जगह में मैंने ये वॉल पोस्टर चिपकाया, और मीटिंग तो बड़ा होगा, ग्राउंड के लिए ही बड़ा अमाउंट मैंने पे किया, विश्वास के साथ कर रहा था। मैं सोचा लोग आशीष पाए। मैं 6:30 उसका टाइम दिया। जब आकाश बहुत इतना काला था,
और धीरे 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 एक दो बूंद इधर उधर गिरने लगा। मैं अकेला ऐसे जल रहा था, बेन हो रहा था, क्योंकि सब यदि मीटिंग सक्सेस हो गया कोई कुछ नहीं कहेगा, यदि फेल हो गया तो लोग आके बोलेगा क्या हुआ। कितनी लोग हमें दर्द देने के लिए हेलो, कितनी लोग हमारे बारे में बोलेगा बड़ा बड़ा काम किया, क्या हुआ। हम अकेला में से जला। मैं 6:30 बजे 6:30 को मैंने अपने माइक उठाया और मेरे प्रेज़ द लॉर्ड बोला। तब क्या हुआ मालूम, ठप से एक आवाज ऊपर आकाश में, बारिश पड़ा से गिरने लगा। मैं बोला, बारिश गिरने लगा। बस मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे उतरा, मुझे ऐसे मैं फील किया, यस यीशु मसीह का अधिकार मुझ में मिल गया। मैंने ऐसे माइक को पकड़ा, हाथ उठाकर मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से हे बादल तुमसे कहता हूं ऐसे चले जाओ। हमको मालूम 3 किलोमीटर दूर चला गया। 3 दिन मेरा क्रूसेड था। एक हालेलुया। कल रात हमारे प्रचार में वही देखा। हमें मालूम है, हम जगह जगह में घूमा, शैतान को इतना खुशी नहीं है। चलो हम घर में जाके प्रार्थना किया, वो इतना खुश नहीं था। हालेलुया। इसीलिए जब शुरू हो गया, मैं हर जगह में जाते वक्त कुत्ता नहीं तो बच्चे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करता, लेकिन उसने क्या किया, हवा को इतनी जोर से मारा, इतनी जोर से मारा, मुझे लगा थोड़ी देर के बाद ये टेंट उड़ जाए। बोला यीशु के नाम में तुम रुक जाओ। फिर उसको हिम्मत नहीं आई एक बार आज मेरी वाइफ ने बोला, कल तुम्हारे वहां पर प्रचार हुआ ना, उसने बोला परमेश्वर ने उसको ऐसे दिखाया, वेल्डिंग होते वक्त जैसे उसकी अंगार, उसकी जो आग गिरने की जैसा मूर्तियों के ऊपर गिर रहा था, जब प्रचार कर रहे थे, उस मूर्ति हट जाएगा, वहां एक आराधना शुरू होगा करके वो मुझे बोल एक कंफर्मेशन मिल रहा था। कल जो आराधना हमने शुरू किया, परमेश्वर की योजना। आपको परमेश्वर, हालेलुया, हमारे प्यारे भाई जेकब ने जो बोला वही हम ये समझे, हम घाड़े जाने के बाद यीशु मसीह के नया रूप होकर हम चलना है। Hallelujah. We have to be a new person in Christ. When we stand against the spirit of evil, we have to proclaim our victory when you preach. शैतान से बोलना। एक दिन मुझे किसी ने पूछा, यू पास्टर जी आप इतनी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बीमारी को जाओ, ये चलने दो, हवा से बोल रहा, यदि नहीं होगा तो, इतनी हिम्मत से आप बोल रहा है, यदि नहीं होगा तो क्या होगा। मैं क्या बोला मालूम, मुझे क्या नुकसान है, कंपनी का नुकसान है। मेरा कोई नुकसान, किसका नुकसान है, कंपनी मुझे भेजा है। हालेलुया। कंपनी ने बोला इसे बोलो, मैं बोल रहा हूं। जब कंपनी की हुक्म मैं चलाता हूं, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा मालिक मेरे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो साधारण मनुष्यों की कंपनी है, एक बात खराब हो गया, रिपोर्ट खराब हो गया, जो दुकान वालों ने भेजा, ये चल नहीं रहे तो कौन जिम्मेवार है, वो दुकानदार जिम्मेवार है, कंपनी जिम्मेवार है, कंपनी जिम्मेवार है। ये लेकर नया देखने के बाद ये पुराना जो खराब है वो भेज देगा। आपको मालूम, जो इस वचन है ना, एक कंपनी दिया है, इसका कॉपी स्वर्ग में स्थिर है। इसीलिए जो कोई भी ये उठाकर चलता है ना, वो कभी फेल नहीं होगा।
हालेलुया। कहानी से बोलो यीशु के नाम में चले जाओ। इसीलिए आप बोलो परिवार की समस्या यीशु के नाम में चले जाओ। चलो आपने कुछ नया बातों में चलने शुरू जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज एक प्रचार मेरे हाथ में परमेश्वर दे रहा है। आप लोग 2 शमूएल की किताब आप पढ़िए। 2 शमूएल 6:11-23। 2 शमूएल 6:11-23। कोई भी पढ़ सकते हैं? हेलो, हाँ। And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Yeah. And it was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Praise the Lord. मैं आपको एक कहानी बोलने के बाद इस बात को कहूंगा, एक आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में। आर्क ऑफ कवेनेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दिन प्रचार किया था आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में, याद है? जो 3 भाग है। उसका दिखाया था 3 कैसे कहाँ है। कितने लोग सुना? विनेश भाई ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज सुन लो। जो सुना नहीं है और एक 4 से देखो, आर्क ऑफ कवेनेंट परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहता है। उसमें क्या रहता है? देखो, ये आर्क ऑफ कवेनेंट है। ये आर्क ऑफ कवेनेंट बड़ा 4 लेवी लोग मिलकर उसको उठाकर चलना है, कंधे पर लेकर चलना है। कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे चलना? देखो, आर्क ऑफ कवेनेंट में एक लकड़ी ऐसे डाल दिया, ये आर्क ऑफ कवेनेंट कहां रहेगा? अपने कंधे के नीचे रहेगा, है ना? ऐसे यहां पर 4 लेवी लोग अपने कंधे ऐसे उठाकर जा रहा, तो कवेनेंट का बॉक्स कहां रहेगा? हमारे सिर के नीचे। लेकिन आपको मालूम, परमेश्वर जब बनवाया, क्या किया मालूम हमको? परमेश्वर ने बोला यहां पर डालना उसका हुक, और जब रखेगा सिर के ऊपर रहना तब ये संदूक। जब आर्क ऑफ कवेनेंट हमेशा तेरे सिर के ऊपर ही रहना, सिर के नीचे नहीं रहना। देखा, आप मालूम है, जब परमेश्वर की वचन आप बोलते वक्त आपको नहीं उठाना, परमेश्वर की वचन वो लिखे रहना। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Don't try to reveal ourselves. We have to proclaim the gospel. When you proclaim the gospel, when you, hallelujah, hallelujah, declare about Christ, we have to proclaim His glory. Yes. Don't try to proclaim ourselves. हम अपने आप को कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं करना, वो हमेशा सिर के ऊपर है। कह रहे ना, सिर के ऊपर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन लोगों ने क्या किया मालूम? दावीद ने बहुत बड़ी एक बैलगाड़ी बनाया। कौन उड़ाकर चलना था? लेवी लोग उड़ाकर चलना था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? दावीद ने बहुत बढ़िया नया गाड़ी बनाया, बहुत सुंदर से बनाया। बनाने के बाद वो गाड़ी में इसको बिठाया, सबसे बढ़िया उत्साह, बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है, उनको बढ़िया ड्राइवर को लगाया। जब उसने वहां देखो,
जब गाड़ी चलाते हुए उसने एकदम कंट्रोल करके इसको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा होशियार था, बहुत अच्छा होशियार था। He was so clever. He was a warrior. He had good knowledge how to ride. Praise the Lord. देखो परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता मालूम? Obey His commandments. Praise the Lord. लेवी उड़ना है, आप उठाना है। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. आप उठाकर चलना, आपके सिर के ऊपर रहना है। वो गाड़ी में रखकर वो चलने दो नहीं, हम चलाना है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. उसके बाद क्या हुआ? जब उसने छुआ एकदम क्या हुआ? वो भस्म हो गया, भस्म हो गया। समझे? इस वचन को लेते समय ना बेफदारी के साथ नहीं ले, बहुत खतरनाक है। ये बहुत आशीष का किताब है, लेकिन ये विश्वास योग्य होकर ना उठाए, उनकी परिवार सत्यानाश हो जाता है। हेलो, हेलो, आप देखा काफी लोग हल्का से उठाता है, हल्का। एक बार जो प्रभु भोज है ना, प्रभु दिया, देने के बाद थोड़ा बहुत बच गया था, बचा हुआ चीज को उठाकर कुत्ते को दिया, कुत्ता खाया। दूसरा हफ्ता तक वो पादरी जिंदा नहीं रहा। मुझे यहाँ पर आने के बाद कई प्रकार से मैं प्रभु भोज को देखा, मुझे दर्द लगता है। कुछ लोग बिस्किट को तोड़कर टुकड़ा करके देता है, बिस्किट को तोड़कर, कुछ लोग जूस ले आकर देता है। देखो वो हमेशा पवित्रताई में करना है उस बातों को। चलो रोटी तोड़ने के लिए बोला, रोटी तोड़ो, कहां पर? चलो कहां पर? परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर तोड़ो। यीशु ने बोला ये मेरा शरीर है। चलो ये मेरे शरीर की जैसा है नहीं, ये मेरा शरीर है। जब कभी भी करे ये मेरे शरीर को दर्शाता है। चलो एक रोटी लेकर प्रार्थना के साथ अपने जीवन को पवित्र बनाकर उसमें चुना, नहीं तो खतरनाक है। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। अपने जीवन को बपतिस्मा ले लिया, बिस्किट मैं देखता हूं, बिस्किट का टुकड़ा 4-5 करके खा लो, एक किसी के लिए, किसी के हाथ में नहीं, जो पवित्र आत्मा पाया उनके हाथ के अलावा किसी के ऊपर नहीं दे सकता है। लो सुन रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना? रोटी को तोड़ना। उसके बाद क्या करना? भाई के साथ। भाई का मतलब क्या है मालूम? What is the meaning of fear? You know that? The meaning. What is the fear? वो तो इंग्लिश में बोल रही है। What is the definition of fear? Fear का definition क्या है? डर। ओहो, डर अर्थ बोला हिंदी में, इसका डेफिनेशन क्या है? उसका मतलब क्या है? हाँ, किस चीज को डर कहता है? आप खाने को कुछ चीज है अंदर में किसी का डर नहीं, वो क्या चीज है? अब एक व्यक्ति को बोल रहा है डर के बारे में समझाने के लिए आप क्या करेगा? चावल है, कोई नहीं देखा, आप बोलेगा चावल क्या है? तो डर क्या चीज है? Follow this rule. Yeah, obey this rule. You have any another idea about fear? What is the definition of fear? Fear is the knowledge of consequence. Knowledge of इसके अनंतर जो फल होगा उसके बारे में जो नॉलेज है वो ये फियर। ये करेगा तो क्या होगा? नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों? आप इंडिया से हम सब लोग अलग अलग कंट्री में चले जाते, यहाँ भी जैसे भी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते, जब रेड लाइट देखते हैं हम क्या करते मालूम? हम इंडिया में इधर उधर देखते हैं और भगा देते हैं, लोग भगाते, इधर उधर देखते हैं, कोई गाड़ी नहीं तो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड में
अकेला गाड़ी चलाएगा तो भी कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है एक हफ्ते का पैसा पूरा चला जाएगा। दे नो द कॉन्सिक्वेंस, दे नो द कॉन्सिक्वेंस। प्रेज द लॉर्ड। उसका लाइसेंस भी क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री में जो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा। दे नो द कॉन्सिक्वेंस। आग को हाथ में उठाएगा, उठाएगा नहीं उठाएगा, क्यों? जलेगा करके आपको मालूम है। इस प्रकार जो परमेश्वर की वचन आप बिना मतलब से लेगा तो उसका हालेलुया कॉन्सिक्वेंस होगा। ये बात को समझना, ये ही है फियर। प्रेज द लॉर्ड। नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काफी लोग प्रचार करने के बाद प्रचार करते करते गिर गया, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते बोलते गिर गया, मर गया। हेलो, इसलिए आपको मैं बोलूं, उसाने छुआ। मैं इस बात कलीसिया को सिखाने के लिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहा था। देखो, ये बाइबल उठाना है, भाई के साथ उठाएगा तो आपका परिवार बच जाएगा, आपका परिवार के लिए बरकत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए अनुग्रह का बहाव होगा। चलो, इसलिए मैं आपको बोलूं, आप सुबह उठे, मैं इसलिए बोला सुबह उठ के प्रार्थना के लिए बैठते रहो, नहीं बैठना। प्रेज द लॉर्ड। सीधे बैठो। प्रेज द लॉर्ड। 5 लोग है घर पे, उतना देखो। मैं यहां पर आप लोगों बड़ा लोग बैठे नहीं, मैं मन लगाकर आपको प्रीच करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप अकेला बैठा हो तो भी मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। 10 लोग हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 लोग हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 लोग हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक आत्मा परमेश्वर ने बोला ये जगत से भी बड़ा है। आप परमेश्वर की संदूक को उठाएगा, आपके सिर के ऊपर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर रहना संदूक, आपसे भी बड़ा होना है। कौन? परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह का नाम हमेशा ऊंचा है। पौलुस बोलता है मैं यीशु का प्रचार करता हूं। किसका प्रचार करता हूं? यीशु मसीह की प्रचार करता हूं, जो क्रूस पर मरा। ये दुनिया के लिए मूर्खता है। Praise the Lord. Is foolishness for the world. Hallelujah. Those who are perishing, but those who believe in that, hallelujah, it's the power of God. Hallelujah. This is the power of God. When you start to believe in the word of God, what will happen? It becomes the power of God. Hallelujah. ये परमेश्वर की शक्ति बन जाता है। Praise the Lord. Hallelujah. ये क्या होता है? बन जाता। तो उसने डर गया। कौन? दाऊद डर गया। उसने बोला उसा इतनी अच्छा आदमी था, मैं कितना बढ़िया सोचा, उसको यदि खत्म किया है तो मेरा हालत क्या होगा। उसने बोला हालेलुया, ओबेदे वो एक अन्य जाति था, ओरिजिनली इस्राएली नहीं था, उनके घर में रख दिया। उसने बोला अरे बप्पा बस मुझसे नहीं होगा, मेरा हालत क्या होगा। उसने वहां लाकर रखा। मैं क्या बोलने जा रहा हूं मालूम? कैसे आशीष पाना, कैसे बरकत को पाना। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने घर में रखा। देखो, वो 1 साल तक वो पत्थर के ऊपर था, कोई आशीष नहीं पाया। लेकिन ओबेदेद के घर में जब आया, उसने क्या किया? अपने तबूल लेके उसने क्या किया? हर दिन उसको लेके पोछा डाला। उसने देखा कैसे चमक रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कितने अच्छे तरीके में देखभाल कर सकता था, उतने अच्छे तरीके में कौन किया? ओबेदेद काम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसने उठते ही आया, उसने कुछ उसमें कुछ दृष्टि तो नहीं पड़ा। ओबेदेद 3 महीने के अंदर दूसरे लोग देखने की तरीके में उनके जीवन में बरकत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आपके जीवन और आशीष में बहुत ऐसे जुड़ा हुआ है। आपकी काम
और आपके आशीष बहुत जुड़ा हुआ है। Praise the Lord। किस प्रकार से आप समर्पित है उस काम के लिए, किस प्रकार से परमेश्वर की काम के लिए दौड़ता है, किस प्रकार परमेश्वर की काम पहला स्थान देता है। Praise the Lord। हालेलुया। उस प्रकार आपके आशीष भी जुड़ा है। Praise the Lord। पास्टर शाह जी वहां पर रहते हैं, वो ऑकलैंड में, और जानती हूँ काफी जो नेशस लोग है ना, लोग रात भर काम करने के बाद सीधे Praise the Lord दूसरा कपड़ा लेकर पहन के चर्च में आने वाला है। वो चर्च का कपड़ा रख के चले जाते, कहां पर? घर जाने के बाद ये यहां आने के लिए लेते होगा, इसीलिए क्या करते मालूम? सीधे वो ही कपड़ा बदलकर Praise the Lord अपने शरीर पोंछ के क्या करते? अरे इतना परमेश्वर को इज्जत देने वाले। Praise the Lord। हालेलुया। वो 1-2 साल में 3 साल के अंदर उनकी बढ़ती ऐसी आता है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपके जीवन, आपकी आशीष बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। आप किस प्रकार परमेश्वर से डरते हैं? पास्टर सुनिए, उसको डरते हो आप बेकार मनुष्य हैं, आपके विश्वास कुछ भी फायदा नहीं। Praise the Lord। क्या आपका इरादा खुदा के लिए है? Praise the Lord। ओबेदेद के घर में केवल 3 महीना रहा। Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बाइबल उठा के पढ़ते हैं? क्या आप बाइबल उठा के उसी के ऊपर ध्यान देते हैं? आपके जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपके जीवन, आपकी चाल चलन, आपकी बातचीत, आपकी आशीषों में जुड़ा हुआ मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी है ना, हम ऐसे हालत में आता है, हम परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी स्थान देते हैं, आखिरी स्थान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सबसे अच्छा कपड़ा मैं पहनता हूँ, मैं अच्छा से अच्छा कपड़ा चर्च के लिए पहनता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं सफेद पहनना शुरू किया मालूम को? ये कुछ भी लगे है ना, एक बार के बाद वो नहीं पहन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये पवित्रता का चिन्ह नहीं है, लेकिन मुझे पता चला दिस इज सिंपल ऑफ होलीनेस। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहने का तो मैं तो पवित्र नहीं बनूंगा, लेकिन मैं पुराने लोगों से सीख गया, जो पेंटिकोस्टल का शुरुआत के लोगों से मैं सीख गया। उन लोग सफेद कपड़ा पहना था, उसका अर्थ क्या था मैं सीखा, क्योंकि लोग सोचता था ये पवित्रता का एक सिंबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्रता ही नहीं है, लेकिन एक पवित्र, आप जानते ये अच्छा सफेद कपड़ा पहन के आप आराम से धूल के ऊपर बैठेगा, अब सोचेगा अरे ये धूल लगी है ना, लग जाएगा। आप ग्रीस में काम करने के लिए जाएगा ये पहन के? नहीं पहनेगा। देखो आपका कपड़ा भी फर्क हो, आप पेट्रोल पंप में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप गाड़ी चलाते हो, आप पादरी का रूप, आप विश्वासी का रूप आप ऐसे दिख नहीं पाए। लो आप एक बार ये देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपका चेहरा देखना, चेहरा देखना, ये परमेश्वर के मंदिर है, आपके चेहरा देखना, एक अविश्वासी के चेहरे देखना, उसके बाद आप देखना क्या फर्क उसमें मुझमें है। हेमा मालिनी में, मेरे मेक में क्या कुछ फर्क है क्या? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, मेरे स्टाइल में कुछ है? मैं 1-2 पुराने लोगों का नाम ही जानता हूँ, इसलिए आजकल का जो सीरियल लोगों का नाम नहीं जानते, इसलिए पुराना मैं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा पान, मेरा कटिंग देखो ऐसे है ना, कुछ क्या है, मुर्गा का पूंछ की जैसा उड़ते रहता है लोग, क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, मेरा कटिंग, मेरा कपड़ा पहनने का स्टाइल देखो, मैं बताऊं, परमेश्वर का वातावरण हमारे शरीर में पहुंचा,
ओबद्य क्या किया मालूम? एक वातावरण सृष्टि किया परमेश्वर काम करने का। जिस जगह में सूखा हुआ हो उस जगह में आपके काम के कारण वह परमेश्वर की उपस्थिति आता है। जिस जगह में शमूएल आया ना, उस जगह में कोई कुछ नहीं था। उस जगह में ध्यान देने वाला था ही नहीं, और उस समय कोई विषय नहीं था। उस समय क्या नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था। उस जगह में बालक ने काम करने लगा, उसने पोछा लगाने लगा। क्या किया? पोछा लगाकर उसने क्या किया? उस दीप को उसने जलाया। परमेश्वर उनसे बात की। आपको मालूम, परमेश्वर तड़पता है आपके लिए, आप ठीक हो जाए ताकि आपसे बात करे। हेलो, आपको त्यागने के लिए उनके कोई प्लान नहीं है। आपको अपनाने का प्लान है। क्या आप तैयार हैं? आप में एक वातावरण बना, आपकी कटिंग से, आपकी चाल चलन से, आपकी बातचीत से, आपकी हंसी से आप एक वातावरण बनाओ। हालेलुया। ओबेदेद क्या किया? एक वातावरण। जो दावीद ने डर के मार के क्या किया? उस संदूक को वहां पर उठा कर रखा। संदूक को उसने किसी ने रखा मालूम? डर के कारण दावीद कांप गया। दावीद ने सोचा ये लेकर मैं यरूशलेम में जाएगा तो मेरा हालत क्या होगा? उसने वहां पर डर के भाग गया। लेकिन वही जगह पर, डर के स्थान पर एक व्यक्ति गया। उसने लेकर खुदा तू मेरे घर में आने की क्या योग्य है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अचानक मेरे घर में तुम पहुंच गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो यरूशलेम में सिटी में जाना था, लेकिन एक गांव में मेरे घर में तुम पहुंच गया। मुझे तूने बुला लिया तेरी सेवकाई के लिए। मैं क्या योग्य था? हालेलुया। ये रास्ता में जाते समय मेरे घर में आने के लिए क्या योग्य था? उसने उस वातावरण बना दिया। एक एक दिल सही है तो, एक एक दिल तैयार है तो, आपका मालूम आपके रास्ते में जाने वाला आशी आपके लिए वहां रुक जाएगा, बदल जाएगा। चलो, आपका आशीष कोई नहीं गया। उसने देखा, देखो चलो कितना अच्छा है। उसने क्या किया? देखो आज मुझे कपड़ा भी मिल गया। देखा आपका ले लिया पैसे भी मिल गया ना। उसने क्या किया? उसने पूछा, उसने बोला अब आप देखो हम भी हैं। हालेलुया। देखो आपके जीवन है ना, एक एक जगह को ध्यान दो। मेरा डेकोरेशन देखे खुदा ठीक होता है क्या? चलो मेरी बातचीत से वो ठीक होता कि नहीं? चलो कुछ लोगों को अभी है ना, मैं डांटने के लिए मुंह करके बोलता हूँ, मैं निकाल देता। नहीं, मेरे मुंह से नहीं आना चाहिए, मेरे मुंह से नहीं चाहिए। चलो हालेलुया। मैं बहुत जोक बोलने के लिए बहुत आइडिया है मेरे पास, लेकिन जो जोक सही नहीं है वो निकालते में नहीं। आपको मालूम मेरे अंदर दो बीज भी है, बुराई का बीज भी है, शैतान डाला हुआ बीज है मैं मुझ में, मैं जानता हूं। चलो किसको अच्छा वातावरण देगा वही तो देगा। चलो इसको किसको आप सींच रहा है, अब वाटरिंग किस बीज के ऊपर कर रहा है? चलो हालेलुया। आप यदि समझो, चलो आप देखो आपके साथ काम करने वालों के डेकोरेशन में, आपके डेकोरेशन में कुछ फर्क है क्या? आपकी कपड़ा में, आप उसके कपड़ा में कुछ फर्क है क्या? आपकी चाल चलन में, डुम चलने वक्त आप सोचना उनके चलन में मेरे चलन में क्या कुछ फर्क है क्या? मेरी आंखों की देखने के विधि में जब लड़की को देखता है मैं कैसे देखता हूं, वो लड़का कैसे देखता है, इसमें कुछ फर्क है क्या? आंखों से एक व्यवस्था बांध लो। हेलो हेलो हेलो। आंखों में परमेश्वर की आत्मा मुझसे क्या बोला मालूम?
जिस लड़की को तुम बुरी नजर से देखने के बाद उस लड़की को प्रार्थना करेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है बिजू। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कितना भी चिल्लाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद उसी आंख में जो दया निकलना था, चलो हालेलुया, नंगा लड़की को देखते समय यीशु मसीह के आंखों में एक तरस आया, लेकिन सभी लोग पत्थर पकड़ कर खड़ा है, इनको मारो। जो लोगों ने उसकी नंगापन की हालेलुया रुचि ले रहा था, उनके हाथ में पत्थर था, मौत था वहां पर। परमेश्वर की आत्मा मुझे जीव सिखाया बिजू हालेलुया, जिसकी आंखों में अपरिवर्तिताई का जो लालच था, उनके पास मौत है हालेलुया, लेकिन जिसके पास दया का बहाव था वहां जीवन था। आंखों से क्या मैं काफी लोग बार आपसे बोला, क्या आपकी आंख बात कर सकता है? बात कर सकता है। गुस्सा आपकी आंखों में है, हाँ। प्यार आपकी आंखों में है, लालच आपकी आंखों में है, हाँ। आपकी आंखों से गोली न चलाने के बाद इस हाथ से मैं पूछ रहा था कुछ दिनों से, प्रभु जी जब पत्रोस सत्ता था, उनकी छाया में क्यों लोग ठीक होते थे? क्योंकि उनके शरीर में पाप आने नहीं दिया। लेकिन आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर का कपड़ा हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आशीष का हो जाए, उनकी आंखों में और रोशनी बढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम, जिस बादल के अंदर पानी है, जिस बादल के अंदर पानी है, आपको मालूम जब सूरज का किरण जो बादल में पड़ जाएगा, नीचे से देखते वक्त काला दिखता है, और जिंदगी क्या है मालूम? सफेद है। जब बारिश पानी उसमें रुक जाता है, रोशनी आते वक्त क्या होता है? वही सफेद दिखने वाला बादल काला पड़ जाता है। जब आपके ऊपर यीशु मसीह की रोशनी आएगा, आप में यदि अपवित्रताई है, आप काला दिख पड़ेगा। आप में से बहने पाए, हालेलुया, आप में से बहने पाए, आपको आप में से होकर ही जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम, हालेलुया, यीशु मसीह आजकल कुछ नहीं, आजकल नहीं, कलीसिया के ऊपर लोगों को नियुक्त किया, आपको नियुक्त किया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको नियुक्त किया, क्या करने के लिए? बीमारों को ठीक करने के लिए। आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल ने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भाई था, हम मिलके जब उनके हाथ सिर के ऊपर जब हाथ रखा, जैसे नदी की जैसा उनके शरीर से पसीना निकल गया। हम कोई दवाई नहीं, हमारी शक्ति हमारे हाथ से निकलेगा यदि एक हाथ को संभालो, यदि आपके जीव को संभालो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस जीव का बात शैतान तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप बीमारी से बोलो यीशु के नाम में चले जाओ, बड़े भाग करने में। एक दिन डेरिक प्रिंस हैदराबाद में आया, वो कुर्सी में ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था कुर्सी में ऐसे बैठ के, उसके पास एक दुरात्मा पकड़ा हुआ एक औरत को लाया। उसने उस औरत की ओर देखा, मैं तब तक देखा था शैतान को निकल जाओ बोलते हुए, लेकिन डेरिक प्रिंस क्या बोला मालूम? Come out. I'm commanding you, come out. कोई आवाज कुछ नहीं उठाया, उसने वहां बैठ के बोला come out. ये तब उसने किया, दुरात्मा जोर से चिल्ला गया। चला हमारी आवाज से नहीं, हमारे पवित्र राय से ही परमेश्वर की आत्मा हम जोर से बोलो, सीधे बोलो, हम सब हमारा ग्रेड बढ़ेगा। जब आर्मी चीफ बोलेगा ना, तो चलो जो सेना डरेगा, तो चलो क्यों? अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को पाएगा जब आप चलते ही शैतान का जड़ मिलेगा। आप पवित्रता आपके शरीर में लाना शुरू करो। ये परमेश्वर की मंदिर है। देख ओबेद क्या किया, उस मंदिर को शुद्ध करने लगा, पोंछने लगा, पोछा मारने
लगा, उनको संभालने लगा। आप अपने आप को, आप मंदिर है, आपकी चल चलन, आपकी कटिंग, आपकी बातचीत, आपकी हंसना, आपकी देखना, एक एक दिन आप पोछा मारना, पोछा मारना। नहीं नहीं नहीं, कल देखा जैसे मैं नहीं देखूंगा, ऐसे जैसे मैंने कल बोला वैसे मैं अपने जीव को इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कल मैं सीरियल देखा था, मैं आज सीरियल पोछा मारते जाओ। क्या करो, क्या करो, पोछा मारते जाओ, मारते जाओ। आप परमेश्वर की मदद हो, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करते हैं। कल में एक ही वचन मैं दूसरे लोगों के लिए प्रचार किया था, अब परमेश्वर के मंदिर को, लेकिन आपके लिए प्रचार करते वक्त पवित्र आत्मा एकदम पलटा करके मुझे रहता है। उनको प्रचार करने के लिए वही वचन किया था, परमेश्वर की मंदिर हो तुम, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करते हो, लेकिन वही प्रचार नहीं बिल्कुल आज का है। पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए अल्लाह के तरीके से अमल करते। मैं आपको बोलूं, आपकी आंखों में पोछा लगा दो। ओ बेदेल क्या किया, वो ताबरनाकल में जो पौधा आया, जो डेस्क आया, उसको क्या किया, क्या किया, पोछा डाला। क्या आप पोछा डालती हैं? आप क्या हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते वक्त आप बड़ा देखते हैं, छोटा ढूंढते हैं। एक पास्टर प्रचार कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन जब सेल्फ खोला, $10 $5 नाच रहा था, $10, हाँ, जो सेल्फ खोला, सेल्फ जानते, अलमारा, अलमारा बोलते हैं, अलमारी जब खोला, ₹5 का नोट, हाँ, और $10 का नोट, क्या कर रहा था, नाच रहा था। और 50 का 100 का डॉलर बैठ के रो रहा। तब पूछा तुम क्यों रो रहे हो? बोला तुम हमेशा $10 को $5 को चर्च ले जाते, हमें कभी भी ले नहीं जाते। $100 को $50 को हमें तुम कभी चर्च नहीं जाते, हमेशा तुम किसे प्यार करते? $10 से हेलो, आपका अलमारा में कौन सी रोता है? $5 दोस्त रोता है, $10 रोता है, या $100 दोस्त रोता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीवी मेरे जेब में देखती है, सबसे सुंदर नोट देखते हैं, सबसे बड़ा देखता है। थोड़ा पुराना दे दो, वो बोलता है, मैं बोलता कैसे भी हो पैसा का, ये पुराना हो नया हो एक ही दाम है ना। मैं बोलते नहीं, खुदा का भवन में जाते वक्त सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। क्या आप देते हैं? हेलो, हेलो, हालेलुया, मुझे आप लोगों में एक आशीष का एक आशा में देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसको और सुंदर बनाओ। वही क्या बनना, कल कहा था 1 साल तक यहोशुआ के खेत में था, वो पत्थर पर था, कोई आशीष नहीं पाई 1 साल तक। इस बाइबल घर में कितनी भी साल रहो कोई फायदा नहीं है। इस बातों को आप कैसे ले रहे हो, कैसे आपके अंदर उतार रहे हो, इस बात को आप अपने जीवन की चाल चल में कैसे ला रहे हो। हमें कुछ लोग तैयार होने के लिए 1 घंटा चाहिए। मैं सेवकाई के लिए जाता था, 2 बच्चे को तैयार कर दोपहर का खाना पका कर रखकर 6 बजे, सुबह 6 बजे मेरी बीवी मेरे साथ निकलती, 2 बच्चों को तैयार कर
और दोपहर के लिए खाना पका कर रखकर 6 बजे में रेडी होते वक्त वो भी रेडी होती। अभी में 6 o'clock हमारा वर्शिप है, वो 6 o'clock है तो 1 मिनट भी कभी मैं फेल होने नहीं देता, मैं करेक्ट 6 o'clock। हालेलुया। उससे पहले नहीं तो 1 मिनट आगे। एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा एक चर्च, मलयालम चर्च, उसका पास्टर है पास्टर एम ए वर्गीस, वो बैंगलोर में है। एक दिन चर्च से माफी मांग रहा था। मैं सोचा बड़ा गलती किया होगा इसने बोला 1 और आधा मिनट में लेट हो गया, माफ कर। 1 और आधा घंटा तक लेट हो गया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देखा उनकी बरकत। मैं आपको बोलूं परमेश्वर को 1 मिनट में, चलो 1 मिनट में, चलो आपकी तैयारी में, आपके देखने में, आपकी बातचीत में, हर एक बातों में किस प्रकार मैं ढूंढा। चलो एक चरवाहा जंगल में था, उनको मैं लेकर आया मेरे लोगों के ऊपर राज करने के लिए। चलो परमेश्वर को ढूंढने के बाद आपको एक स्थान मिलेगा। आपका मैं देखा आपका पढ़ाई नहीं, आपका बड़ा पढ़ाई बड़ी बात नहीं है, आपकी सुंदरता बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर की आत्मा लेने के लिए एक दिन पास्टर शाह जी के चर्च में मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार करते ही एक बार परमेश्वर की आत्मा उसी स्टेज में खड़े होकर मुझे वो रिवलेशन दिखाया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे, उसके पहले मैं कभी उस विषय के बारे में सोचा ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा पूछा, योना के पीछे में क्यों चला मालूम था? योना के पीछे में क्यों चला मालूम था? क्योंकि मैं जो जीव इस्तेमाल करना था वो जीव में अपवित्रता ही रह नहीं सकता। 3 लाख लोग था निनवे में, मैं उनको बुलाकर उससे बुलवा सकता था, लेकिन होगा नहीं। धर्मी जन के जीव के अलावा और एक जीव परमेश्वर इस्तेमाल कर नहीं सकता। इसलिए वो भाग रहा था, उनको भी मालूम था, योना को भी मालूम था, मैं बोलेगा तो लोग मन भराएगा, उन लोग मन भराएगा। आखिरी मेरा बात नहीं चल पाएगा, इसलिए वो भी भाग रहा था। जब उसको पकड़ा, जब जहाज के नीचे आराम से सो रहा था, उसको पकड़ा तो वो भी उनको मालूम था मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, मेरा प्राण चले जाएगा करके मालूम था। फिर भी वो झूठ नहीं बोला। उसने बोला मैं ये कर उड़ा के क्या करो, समुद्र में फेंक दो, आपका परेशानी खत्म हो गया होगा, मेरा भय, मैं ही ये परेशानी का कारण। लेकिन योना कभी झूठ नहीं बोला, इस कारण उसके जीव परमेश्वर इस्तेमाल किया। आपका जीव इस्तेमाल करने के लिए आप चाहते हो? अभिदेव की तरह मंदिर को साफ कर, आपके जीव को साफ कर। प्रभु मैं चल की बात मैं अपने जीव में नहीं लाऊंगा, मैं बेकार की बात नहीं करूंगा, मैं इच्छे के खिलाफ नहीं लूंगा, मैं लड़कियों को देखते वक्त, लड़कों को देखते वक्त मैं आंखों में कोई और व्यवस्था मैं नहीं लाऊंगा। मैं चलते वक्त मेरे छाये में लोग ठीक होना है, प्रभु मेरे छाये में होना है तो मुझसे जो शक्ति ऐसे बहेगा उसमें कोई बादल ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 महीने, कितने महीना बोलो, कितने महीना? 3 जैसे जैकब ने बोला, जब पानी से आप दफनाने के बाद जब बाहर आएगा ना, एक नया क्रम में चलना शुरू करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे नहीं पुराना बात नहीं, पुराना चेहरा नहीं। कुछ लोगों का विश्वासी को मुंह देखेगा तो ऐसे दिखेगा। आपके चेहरे में क्या रहे? क्या रहे? अभी मुस्कुराने के लिए सोच रहे हो, हंसते रहो। क्या करो? क्या करो? हंसते रहो। अपना माध्यू भाई क्या हंसते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे में क्या रहे? क्या रहे? हेलो, क्या रहे?
एक मुस्कुरा दे। क्या रहे? Praise the Lord. आप कैसे डेकोरेट कर रहे हो आपके शरीर को प्रभु की? एक दिन पोलियों की प्रचार करने के लिए जब आते वक्त बोल रहा था, मैं जब स्टेज में जाता ना, एक कमान के तरह जाता हूँ, मैं जो कुछ बोलेगा वही होगा। चलो, वो हिम्मत हमारे अंदर है। मैं जो बोलेगा वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दिन एक बहुत मंदिर में, इंडिया में एक मंदिर में पूजा चल रहा, बड़ा हॉल में बड़ा पूजा का ये आवाज हो रहा था। मैं पर्चा बांटने के लिए गया, मेरे पास छोटा छोटा किताब था, 1-1 रुपया में बेचना था मुझे। वो बेचा नहीं तो वापस आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं सोचा इसको बेचना ही है और कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मैं वहां पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट था, उसमें ऐसे खड़ा होकर मेरे झोला में भर के, मेरे साथ और 4 लोग था और मेरा झोला में भरकर वो किताब था, वो किताब पकड़कर मैं ऐसे खड़ा रहा। मैं सोचा क्या करूंगा, ये त्योहार चलने के कारण हमारा बुक का कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं ले रहा। मैं सोचा क्या करूं? और एक गांव में जाना है तो भी पैसा चाहिए, मेरे पास जो पैसा था उसी से तो उस गांव में आया। मैं सोचा किसी को भी बेच के क्या करूंगा, क्या करेंगे, पैसा होगा, हमारा रोटी का भी, हमारा जाने का किराया भी हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बड़ा हॉर्न रखा है, पूरा गांव करीब 20,000 लोगों का गांव है, एक भी मशीन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसे खड़ा होकर पोस्ट में खड़ा हुआ, जो मेरे साथ था वो बोल रहा चलो ना चलो, मैंने बोला नहीं अभी नहीं चलेंगे। मैंने सोचा पुजारी के पास ही जाए। मैं सीधे पुजारी के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या नाम था उनका? हम कल गया षणमुख। जब प्रचार सुन रहा था मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आधे में उल्टी आया उनको, षणमुख आधा में उल्टी आके वो जाके उल्टी किया मालूम को। जब दुरात्मा का ताकत उसमें रहता, जब वचन जाते वक्त वो नहीं बैठ पाएगा आराम से। हालेलुया। वो जाके उल्टी करके मुंह धो के फिर आया। अच्छा किया उसने गया नहीं, उसको छुटकारा होगा। आने वाले दिनों में इनको नहीं छोड़ना, वो फिर विश्व के राज्य के लिए काम करेगा। आमीन। हो गया है उसका मतलब दुरात्मा का ताकत। देखना उस गांव से झुंड बनकर बपतिस्मा के लिए लोग आए। देवी देवताओं की शक्ति वहां पर, हमने कल रात को हम मिलकर क्या किया, उसकी न्याय किया गया। The judgment happened on that, hallelujah, on that devil, demonic power, hallelujah. It's happened when we were working together in that village. It's happened. अब न्याय हुआ उसकी, हालेलुया, जजमेंट हुआ है। वहां से आप देखेगा परमेश्वर, जिस घर में देखेगा आपके विरोध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अधिकार के वचन बोलेगा ना हमारे जीवन से, एक एक व्यक्ति से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पास्टर मुझे बोला एक घर में जाके हम प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बेटी 13 साल की बेटी थी, उनकी पैर ऐसे दोनों ऐसे था। परमेश्वर की आत्मा मैं बोला मेरे बेटी को जाएगी, वो ठीक नहीं होगा करके डॉक्टर बोला, वो आज चल रही। हमारे अंदर परमेश्वर क्या दिया मालूम? क्या दिया? बोलो इस बात में ताकत, स्वर्ग का ताकत है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं आ रहा हूं। कुछ लोग जैसे बच्चा जो मछली पानी के ऊपर पीछे नहीं, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं शैतान के विरोध में आ रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं शैतान के विरोध में आ रहा हूं, मुंह खोलो,
कम से कम आप सुन, आपकी आवाज हालेलुया। कुछ बोले इस लाइन के लोग बोले, मैं शैतान के विरोध में आ रहा। शैतान के विरोध में आ रहा हूँ। बहुत अच्छी आवाज। चलो, दूसरा लाइन। मैं शैतान के विरोध में आ रहा हूँ। सुना? ये दो लोग बोलो, आप बोलो, मैं शैतान के विरोध में आ रहा आप हूँ। भी बोलो। मैं शैतान के विरोध में आ रहा हूँ। हाँ, शैतान डर जाएगा। नेक्स्ट बच, रो रहा है, आ रहा। मैं शैतान के विरोध में रो रहा हूँ, आ रहा। तो जोर से बोलो ना, मैं शैतान के विरोध में आ रहा हूँ। कोई भी शैतान की ताकत हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। जब मैं तैयार हो जाता, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलने लगता, शैतान की ताकत टूट जाए। जब हम चलते रहे, हमारे परमेश्वर अब्राहम से बोला, देश में लंबाई और चौड़ाई चल, मैं तुझे उसे दूंगा। मैं 3 महीने के अंदर और बेटे के परिवार की स्थिति बदल। क्या आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हो? क्या आप आशीष पाना चाहते हो? मैं आपको बोल दो, ये मंदिर को दौड़ो, लो, हालेलुया, फैसला कर खुदा, मैं दे दूंगा खुदा का सेवा करने के लिए। मैं अपने शरीर को दे दूंगा इतनी घंटा, हालेलुया। आप कम से कम अपने जीवन में एक हफ्ता में 1 घंटा परमेश्वर की सेवा करने के लिए दे। हम बोलते प्रभु तू ये मेरा राजा, तू ये मेरा, इसलिए मुझे दिन भर का रोटी दे दे, मुझे, हाँ, मेरे बिजनेस में खुदा तूने आशीष दी, तो हालेलुया। और मेरे बीवी को, बच्चों को तू संभाल, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम जाके क्या करो? सेवा करो। तुम जाके क्या करो? सेवा करो। हम क्या बोलते मालूम उनको, खुदा मेरा जीजा जी का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, तुम जाके उनको ठीक कर। और से आते समय मेरा बड़ा पापा वो भी बीमार में पड़े, उनके पास भी जाना। और मेरा जीजा जी वो लेटोका में, उनके पास भी जाना। मैं तो थोड़ा बिजी हूं, तुम जाना। हम बोलते हैं जाना, यीशु बोला तुम जाओ। आप जाएंगे, उनको भेजेंगे, हम जाएंगे। या कभी पड़ोसी का घर जानते हो? क्या क्या नाम है आपके पड़ोसी? उनका क्या नाम है? आरती है। हाँ, दूसरे के साथ उतना अच्छा नहीं है ना। देखो, पड़ोसी के घर को जाओ, पैर रखो, आपसे दुश्मन है तो भी कोई बात नहीं, आमेन, आप अपने प्यार, आमेन, लो, आमेन, आमेन, हालेलुया। आपको मालिश करेगा तो सब आपके लिए पसंद है, लेकिन आप प्रेज़ द लॉर्ड, आप उद्धार पाया कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इसके अंदर तेल है, सोचो तेल है, जब कप से मारेगा क्या फटेगा? तेल ही भाग रहा है ना। उसके अंदर कीचड़ है, सोचो कप से मार के देखो क्या आएगा? कीचड़ आएगा। आपको मार कर देखना, तब पता चलेगा आपके अंदर क्या है। चलो लो, हालेलुया। जब तक आपको, अनिल भाई वाह क्या बात है, जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, टकरा कर देखो तब पता चलेगा सुगंध निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कौन हूं तुम्हें
उंड्रे से भी बड़ा है मैं 99 പേർക്ക് പിന്നെ ആളുടെ പേരാണ് ഉണ്ട്രെ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ രക്കിരക്കിയില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു 99 പേർക്ക് ഇന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പേര് क्या नाम है उसका आत्मा है मेरे अंदर पास बैठे उनसे पूछो उंड्रे का आत्मा है क्या आपके आप कितने लोगों को खाया आप कितने लोगों को खाया आपके साथ किसी का दुश्मनी है ये तो आप खाया नहीं आप किसी के घर में जा नहीं पाते हो आपके अंदर कड़वाहट है आप किसी से हाथ नहीं मिला पा रहे हो ओबेदेद के घर पे 3 महीना ओबर अंदर रहा ताबरनाकल रहा ओबर कर पाया कोई भी टेस्ट उनमें रहने नहीं दिया कोई भी टेस्ट उनमें रहने नहीं दिया उसने पोछा मार दिया within 3 months you receive the blessing मैं आपको बोलूं 3 महीने के अंदर आपके जीवन में एक परिवर्तन नहीं देखा मेरा प्रचार से चर्च में एक बढ़ोतरी नहीं देखा इस प्रचार से इस टीचिंग में मेरा टीचिंग कोई फायदा नहीं आप दूसरों के घर जा रहे हैं जो आपसे नफरत रखते हैं हेलो हेलो हालेलुया हालेलुया यदि मैं यीशु मसीह के स्थान में होता मैं जुई उड़ने के बाद किसके पास पहले जाता के पास जाता खड़े होकर बोलता मैं तूने कल जो बोला था ना शुक्रवार के दिन जो कौन जो तूने मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो बोला ना वो यीशु तुम अभी छू सकता है मुझे नहीं उनके पास नहीं तो मैं कहां जाता मालूम को वो याचक के पास जाता था जो 30 सिक्का गिन के यूदा को दिया था से पूछता तूने दिया लोग हम सोच के रखा है हम उड़ने के बाद मैं अच्छा होने के बाद मैं आशीष पाने के बाद मैं पूछूंगा उनको दिखाऊंगा ऐसा एक मन आपके अंदर है इसको पोछा डालो 1 साल उत्साह में रहेगा तो भी कोई फायदा नहीं है वो बेदर्द के घर पे 3 महीने था वो आशीष समी का लंबाई से आशीष नहीं पाते आपकी पवित्र राई से आशीष पाते हालेलुया हालेलुया पर जेकब बहुत ही मेरे संदेश के साथ उसने संदेश हम नहीं बोला क्या बोलेगा मालूम है ना पास्टर शाजी को बोला उसने नहीं उठा इसलिए भी उठाया आपको मालूम उसका संदेश वही था एक नयापन में चलो आप एक नयापन में चलो कोई छू नहीं पाए हालेलुया 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 कुछ भी हो उसमें पहुंचा मैं क्या करो उसको आग को पोछे डालो जीव को पोछे डालो सोच को पोछा लगा दो चलो मैं किसी से बातचीत करते वक्त कुछ सोच में मैं खुदा अंदर ऐसे कुछ सोच है क्या मेरे जीवन में हालेलुया जो किसी के विरोध में मैं थोड़ा अच्छा जाऊं उसके बाद मैं भी पूछूं मेरे पास थोड़ा अच्छा पैसा हो उनसे बढ़िया गाड़ी में भी खरीदूंगा आप कुछ भी अच्छा गाड़ी खरीदो परमेश्वर से नजर नहीं रखता लेकिन दूसरों से जय पाने के लिए कभी गाड़ी नहीं खरीदो आप घर बनाओ उसी से कोई परमेश्वर को जलन नहीं है लेकिन उनसे बढ़िया घर मैं बनाऊंगा वो गलत है कभी किसी से कंपेयर नहीं मैं खुदा से मैं उनको नहीं हराऊंगा खुदा मैं उसको जिताऊंगा उनको मैं आशीष का कारण बनाऊंगा 3 महीने ओबेदेद के घर पे परमेश्वर के ताबरनाकल रहा विद इन 3 months दावीद सुना वो आशीष पाया
उसने लेवियों को तैयार किया और बोला सिर के ऊपर रखकर हम क्या करेंगे, कंधे पर परमेश्वर की संदूक को लेकर आएंगे। हालेलुया। दावी अपनी सोच बदल दी, उसको पता चला हालेलुया कौन सी, एक गाड़ी में चलाना नहीं, हालेलुया गाड़ी में चलाना नहीं, और किसी के ऊपर बोझ बोल के मैं बड़ा होकर चलूंगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उठाऊंगा परमेश्वर के संदूक, हालेलुया। मैं क्या करूंगा, मैं अपने परमेश्वर की संदूक को उड़ाकर मैं चलूंगा। तुम उठा के चलो, मैं पीछे आऊंगा, ताली बजाऊंगा, नहीं नहीं, मेरे ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे ऊपर, हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, आपको ढांढो, आपको कुछ भी कहे, आपकी संदूक, जो परमेश्वर की संदूक आपके सिर के ऊपर उठे रहे। जब आप अकेला हो जाए, परमेश्वर की संदूक ऊपर उठे, स्वर्ग से परमेश्वर आपको देख नहीं पाए। कौन कैसे चल रहा, डोंट वरी अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, डोंट वरी अबाउट। आप सोचो मैंने कंधों पर क्या रखा, परमेश्वर की संदूक रखा। बोलो मेरे कंधों पर परमेश्वर की संदूक रखा। मैं सीधे चलूंगा, मैं सीधे चलूंगा, मैं ना बाई ना दहनी नहीं, परमेश्वर के राहों में चलूंगा। हालेलुया। आंखें बंद करें, खुदावंद यीशु की बारह शगल जुराल लगाओ। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। हाथ उठाए, हम धन्यवाद की शब्द बोले। मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी आवाज हमसे निकलने वाली, सबसे ऊंची आवाज परमेश्वर की आवाज। पूरी बाला बाला बुरा लगा बाबा शब्द लगा बुरा लगा। हालेलुया हालेलुया। रिसीव इस पावर। हालेलुया। बोलो यीशु तेरा ताकत मुझ में दे। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, हालेलुया। तेरी शक्ति और पावर मुझ में आने दे। हालेलुया। मेरे जीवन में संदूक रहने पाए। हालेलुया। बाबा चादा लगा में रहने पाए। अपने जीवन को संभाल के अपनी जिंदगी जीवन में पोछा करेंगे। जो बैल आज हमारी जिंदगी जीवन में आज उसको खोज कर आज साफ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। 3 महीने के बदले बीच में तो परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलेंगे पिता परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद सुंदर पवित्र आत्मा आपकी अभिषेकता के धन्यवाद। आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी हर एक मन को परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। महसूस करें परमेश्वर की आत्मा। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओह यस लॉर्ड फादर। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करें। ओह यस फादर। यस लॉर्ड जीसस।
सच्चा है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है पिता, तू आज हमारे मध्य में है पिता। ओह यस लॉर्ड जीसस, हर एक मन को छूने के लिए धन्यवाद देते पिता। आप अपने वचन को ढेलने के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेकता भरने के लिए पिता आज हम धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है पिता, हे हमारे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सब बच्चे भीड़ बनकर आपके सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता। आज हम धन्यवाद की भीड़ चढ़ाते प्रभु कि तू कितना अच्छा बड़ा परमेश्वर है पिता, सामर्थी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है पिता। आज आपके सेवक के द्वारा पिता जो वचन आज तूने आज हमारे बीच में डाला है प्रभु, हमारे मनों में डाला है पिता परमेश्वर, आज से प्रभु परमेश्वर वचन के नाए आज पिता परमेश्वर हम चलना शुरू करते प्रभु। आज हमारे जीवन में पिता कोई भी कमजोरियां है प्रभु परमेश्वर, आज उस कमजोरी को आज हम बोझ दे प्रभु परमेश्वर, अपने जिंदगी जीवन से निकाल दे यीशु मसीह, तभी जाकर पवित्र आत्मा की विशेषता को हम महसूस कर सके पिता। आज हम धन्यवाद देते अपने हर एक गुनाहों को प्रभु, हर एक कमजोरियों को आज रात्रि को हम निकाल करते यीशु मसीह के नाम से पिता। ऐसे घड़ी हर एक जीवन मन और आत्मा को छोड़ दे पिता, पवित्र आत्मा की विशेषता से भर दे, ताकि आज के बाद जब लौट कर हम जाए हमारा सोच बदल जाए, हमारा देखना बदल जाए, हमारा सुनना बदल जाए, हमारा बोलना बदल जाए। और ये कार्य सिर्फ पवित्र आत्मा के विशेषता के द्वारा हो सकता है पिता। ओह हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपके शब्द के लिए धन्यवाद देते, आपके सेवक के लिए धन्यवाद देते, जो सुंदर वचन से आज इस रात्रि को हमें तृप्त किया है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता आज धन्यवाद देते पिता। आज प्रभु परमेश्वर आपके सेवक लोग पिता परमेश्वर जो कुछ भी तैयार करके लाए पिता, जैसे ग्रहण करेंगे मदद करना, महल देना पिता, और प्रार्थना दुआ करते कि आपके अभिषेकता रहे, ताकत शक्ति रहे, ताकि देह के द्वारा आपकी महिमा कर सके। कल प्रभु परमेश्वर सुबह जो सभा होगा फर्स्ट चर्च में प्रभु, उस सभा को आपके सुंदर पवित्र हाथों पे अर्पण करें। आज एक रिवाइवल मीटिंग कल रात्रि कल शाम के वक्त 2 बजे से हमारे कलिसिया में होगा, उस दोनों सभाओं को आपके सुंदर पवित्र हाथों पे अर्पण करें। जागृत का सभा रहेगा प्रभु, जहाँ पर कई लोग आएंगे और अपने आशीष को लेकर जाए पिता, आपके धन्यवाद करेंगे पिता, आपको भेंट चढ़ाएंगे पिता। धन्यवाद के साथ पिता हर एक लोग के जीवन आपके सुंदर पवित्र हाथों पे अर्पण करते प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मानते हैं। सभी लोग बोले आमीन। तो प्रार्थना कराना चाहते हैं। आज हम एक खरीदी पाई के हमें हम चारों मिल के गया था कामिलू में, बस आज सुन के करके थोड़ा आगे वैसे जाके कोई हिंदुस्तानी भाई होगा सोच के उस एरिया में गया, लेकिन हम गया था एक कम्युनिटी कवेली कभी जो आप बोल रहे उसके लिए मैं वोट डाल रहा हूँ। उनके घर गया और उनके पत्नी रोका, वहाँ खड़ी थी, वो आके बोला ऐसे बोला, हमने सोचा ऐसे, लेकिन हम यीशु के बारे में बोला, उन्होंने बोला अंदर आओ। जब हम अंदर गया हम वो बोला, जब हम प्रार्थना किया उसने बोला मेरी बहनें अंदर है वो ठीक नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद बारिश का मौसम ऐसे दिख रहा था, मैं सोचा जल्दी आ जाओ। मैं बाहर आया, लोग दोनों वहाँ खड़े थे, पास्टर शाजी और जैकब, वो कुछ पूछा उनसे, उन लोगों को प्रार्थना करने लगा। मैं जब बाहर खड़े होकर इसे देख रहा था, अंदर से चिल्ला रहे थे, चिल्लाया, वो लड़की के अंदर दुरात्मा था, वो चिल्लाने लगा और वो पूरी रीति में उसके अंदर से वो चला गया। तब तक उसकी पति आया, पति भी बोला मेरे लिए भी प्रार्थना कर। उनकी पत्नी जो मैं स्वागत किया, वो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बोलने लगी। हालेलुया। उसके बाद उनके छोटे लड़की मेरे ख्याल से 15 साल की थी, वो यीशु मसीह को उसी क्षण अपने मुंह से कबूल किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर
हालेलुया। आप किसी से भी प्रार्थना करो, लोगों से प्रार्थना करो, परमेश्वर की आत्मा पाओ। आमीन। थोड़ी देर हमेशा ऐसे मौका नहीं मिलता। आओ प्रार्थना करो। कितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं? शाहजी, जेकब, मैं और बिनोई ब्रदर, हम चारों प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रार्थना के लिए चाहते हो, हालेलुया, आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलो जल्दी खड़े होकर आइए। खड़े हो जाए, अगर कोई प्रार्थना चाहते हैं आप आगे आए। पास्टर जी हमारे मध्य में है, आपको लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना किया है, उन लोगों से प्रार्थना करा।